Good afternoon to all of you. Welcome to the next video of the series, and here we shall be discussing the contemporary development, particularly with respect to the election results in the Maldives, where has been said that the pro-China candidate, that is Mohammad Moizu, he has won, and it is being termed that perhaps this will be a setback to India-Maldives relations, India first policy of Maldives, and all those factors, and increasing influence of increasing influence of China in Maldives. So before I start discussing this topic, the very first news is with respect to Canada. I hope not much is needed in that, because significant developments have not taken place. If there is any significant development that takes place, I shall be discussing that. And the very recent news is that Hamas has yet again attacked on Israel, on East Jerusalem, Tel Aviv. There have been rocket firings, and in return Israel has declared a war. As this progresses, within perhaps next 3 to 4 days, I shall be coming up with a fresh new video where we shall be discussing in detail this whole Israel-Palestine issue. Okay, so let us presently discuss this particular news. Okay, so this is Mohammad Ibrahim Soli, who was the now ex-president, and this is Mohammad Moizu. The point is that this time this was the contention, and Mohammad Ibrahim Soli, he had reaffirmed the India first policy of Maldives. And this particular topic, this particular issue, this will be important for the following topics that I shall be saying you. The very first is with respect to impact on India's neighborhood first policy. Second is in the Indian Ocean region and influence of China. And third, and perhaps this can be a type of question, is that how India's relations with its neighbors is impacted by the domestic politics respective nations. This can be a potential question in which the ongoing Maldives results, that can be an example. And not just this, if you talk with respect to Nepal, okay, what happened during Oli regime, or with respect to what happened during Bangladesh, even in Sri Lanka. So in all these states, this is something very common that we see, that as the government changes, the calculations with respect to India changes, and generally the politics in all these nations in India's neighborhood, it goes either pro-India or pro-China. With respect to political science students, this can be a potent topic with respect to the difference in the working of democracy, or how democracy in the developing nations is different from developed nations. Because the issues over here that we shall be looking at, they are patently different from the issues that is raised by the developed nations. And how polarized politics mixed with national identity, mixed with religion, it becomes a very dangerous cocktail within the domestic politics of all these nations. So that was with respect to PSIR students, and all these issues
can be for both PSIR students as well as GS students. Okay, so now let us go back to the news, the event. Point is that the elections took place and ultimately this is the candidate who won, that is Mohammad Moizu. And look at this particular news that I have mentioned. Will send back military forces. In Maldives, India has provided with one Dornier and two choppers. In 2018, during the previous government, they had also said that India to take back the choppers. India was a bit hesitant because India wanted there to stay so as in order to ensure the security of the regime. And later on, since 2018, we saw there was an increased movement, that is India out. This movement was led by primarily the political parties, and Mohammad Moizu, his one of the key election planks was claiming back the sovereignty and India out. Okay, so since this was the plank, and moreover the party that he belonged to, that is also considered to be pro-China, since it belongs to Abdullah Yamin's party, because during the last phase of the election, as the election was approaching, the Supreme Court, Maldivian Supreme Court, said that Abdullah Yamin cannot fight election. He belonged to the same party and presently he was the mayor of Malé. His win was unexpected, but when it came, it is being said that this will be a huge setback for India. So before we look into this whole gamut of relationship, let us just look into the history. So you see, with respect to when we talk about India Maldives history, the point is that in 1965 Maldives got independence from British, and India was the first nation, the very first nation which recognized. Okay, and then 2005 Maldives High Commission in India was opened, and it was the third High Commission of Maldives anywhere. So you can see how deep the relations were. Later on, we saw that in 1976, the Maritime Boundary Treaty, which was signed, after which Minicoy, which is part of Lakshadweep, because it is the 8-degree channel that separates Maldives from Lakshadweep. We shall be looking at in the map, and this 8-degree channel, this is important from your prelims point of view. Later on, what happened? Yes, this is very much important. Okay. Maumoon Gayoom, he was the president of Maldives in 1988, and this was the time when there was an attempted coup with the help of a businessman, as well as there was a group called as PLOTE, People's Liberation Organization of Tamil Eelam. And when you listen Tamil Eelam, yes, it is somewhere related to LTTE, because this group, this was separated from LTTE in 1980 and came into existence. Okay, and when this coup was attempted, at that time the Indian government, the Indian military intervened, secured the airport, and ultimately they had to go back to Sri Lanka, these plotted terrorists or extremists, and that was something that further strengthened India Maldives relations. But mind you, this Maumoon Gayoom, he was by very nature he was a dictator.
by very nature he was a dictator, and in 2008 only, after protest, that multi-party democracy came in, and he had a regime of 30 years. Another interesting fact, he is half brother of Abdullah Yamin. The pro-China president from 2013 to 2018. So when we say that India has always supported democracy across the world, it is not so. Even we have from time to time tried to focus on the stability, because he was not a democrat by very nature, he had a tenure of 30 years. Similarly, you look at Myanmar. In Myanmar also, we are not going for directly intervening in support of Suu Kyi, right? Why? Because again we know that if we are going to interfere directly, if Suu Kyi weakens, then ultimately whosoever the military regime which is presently ruling, it will go even more closer to China. The distrust between India and Myanmar will increase, and that will increase the security concerns or security challenges in the already restive northeast region. Similarly, if we go for too much interference in the Maldives, naturally that will create challenges for not just Lakshadweep but across this Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, this whole belt. Because what is the distance? So that is why our approach with respect to foreign policy to a greater extent has been very much pragmatic. Okay, so I hope you people are very much clear about Operation Cactus. Then as I said to you people, in 2008 Maldives became a multi-party democracy, and this was the time when MDP, that Maldives Democratic Party led by Mohammad Nasheed, he came to power, and again the relationship from 2008 to 2013, the relationship was very strong, very smooth. ठीक है, यहां तक सब कुछ सही था. फिर 2013 में क्या हुआ? अब्दुल्ला यामीन ही केम टू पावर. उसके बाद फिर ही स्टार्टेड चैलेंजिंग द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स. इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज किया. तो रिलेशनशिप क्या हुआ? रिलेशनशिप स्टार्टेड डिटेरियोरेटिंग. अब्दुल्ला यामीन ने साफ साफ इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी को रिजेक्ट नहीं किया था. हाँ, उसके पहले मैं बता दूं, मालदीव्स हैज अ डिक्लेयर्ड फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया फर्स्ट. ये मालदीव्स की फॉरेन पॉलिसी है, दैट इन देयर फॉरेन एंगेजमेंट्स दे विल फर्स्ट कंसीडर इंडिया. रीजन बीइंग, छोटा सा देश है, हार्डली $6 बिलियन की इकोनॉमी है. तो आप जाओगे कहाँ जाओगे? इवन ड्यूरिंग कोविड हमने उनको 1 लाख वैक्सीन भेजे थे. उसके अलावा क्या था कि मालदीव्स के लिए इंडिया वाज ओपन प्राइमरली विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रीटमेंट ऑफ मालदीवियन पेशेंट्स. ठीक है. सो अब्दुल्ला यामीन ने इंडिया फर्स्ट को सीधे का सीधा रिजेक्ट किया नहीं था, लेकिन ही वेंट प्रो चाइना. चाइना के साथ इन्होंने FTA साइन किया. $6 बिलियन की इकोनॉमी और रफली $1.5 बिलियन का इन्होंने चाइना से लोन ले लिया. एंड दैट टू लोन इस तरीके के से था कि जो $600 मिलियन था वो मालदीवियन गवर्नमेंट ने लिया था. बाकी $900 मिलियन ये लोन लिया था प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ने ऑन द बेसिस ऑफ सॉवरन गारंटी. सो उसके बाद जब ये 2018 में पार्टी से, जब ये इलेक्शन से हटे, तो अब्दुल्ला यामीन के बाद, जस्ट अ सेकंड,
ठीक है, तो अब्दुल्ला यामीन 2018 आउट ऑफ पावर, राइट। ठीक है, तो इसके बाद जो मोहम्मद नशीद थे, एट दैट टाइम ही वाज आउट, क्योंकि इनके ऊपर भी ग्राफ्ट के चार्जेस लगे थे, क्योंकि इवन ही हैड पुट, एक जो क्रिमिनल कोर्ट था उसके जज को जेल में डालने के लिए, तो उसके अगेंस्ट देयर वेर चार्जेस ऑन हिम, एंड एज अ रिजल्ट ही कुड नॉट फाइट इलेक्शन। सो इनकी जगह इट वाज इब्राहिम सोली who fight elections and won, and relationship started repairing, and during his inauguration it was PM Modi who attended, which was an unprecedented gesture on the part of India. So इस तरह से हमने रिलेशनशिप को रिपेयर किया। उसके बाद क्या हुआ, अभी रिसेंट टाइम में, रिसेंट के इलेक्शन में, कि देयर वाज अ कंसर्न विद इन द माइंड ऑफ मोहम्मद नशीद। ही वॉज थिंकिंग कि जो इंडिया है ना, इंडिया इज गोइंग गेटिंग क्लोजर टू इब्राहिम सोली एंड इंडिया इज इग्नोरिंग मोहम्मद नशीद। तो इब्राहिम सोली से मोहम्मद नशीद गॉट सेपरेटेड एंड ही फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी कॉल्ड एज द डेमोक्रेट्स। और नई पार्टी बनाने के बाद, वैसे तो इसे इलेक्शन में वोट मिले सिर्फ 7%, लेकिन मोइजू और इब्राहिम सोलीह के बीच का गैप है जस्ट 8%। ठीक है ना, मोइजू एंड इब्राहिम सोलीह। सो इट इज ऑल्सो सेड कि हैड ही नॉट मेड अ सेपरेट पार्टी एंड हैड हिज पार्टी नॉट कंटेस्टेड, परहैप्स सोलीह वुड हैव वॉन। ठीक है, उसके बाद, एंड presently Mohammad Nasheed, he is the speaker of the house, so he continues to be in a very influential position. ठीक है, उसके आगे हम देखेंगे, इन्होंने रिसेंट में द हिंदू को इंटरव्यू में बोला है कि नहीं, Maldives will not be going back from India first policy and it is not about pro China, that we shall be looking at. ठीक है, सो सबसे अब हम ये देखते हैं कि why are we talking about Maldives, why Maldives is so much important to us. You are looking at this 8-degree channel, 8-degree channel which separates लक्षद्वीप फ्रॉम Maldives. सो देखो, कोई भी अगर शिपिंग रूट है, अगर वो शिपिंग रूट इधर से आता है, या फिर फॉर एग्जांपल सपोज करो इधर से आता है, तो अल्टीमेटली दैट मेक्स Maldives वेरी मच इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली, पर्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो इफ इंडिया वांट्स टू इंश्योर इट्स प्राइमेसी इन द इंडियन ओशन रीजन, कि इंडियन ओशन रीजन में जो हैं हम हैं, एंड वी इंश्योर टू बी द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन, तो वैसे में क्या है कि Maldives के पास तो हमारा किसी न किसी तरह का डिप्लॉयमेंट रहना चाहिए, कि किसी भी तरह की अगर सिक्योरिटी चैलेंज आए तो इंडिया इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर सके। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन कि यहां पे हमारे बड़े सारे एंटीनाज हैं, डिप्लॉयमेंट ऑफ डॉर्नियर्स हो गया, चॉपर्स हो गया, सो दैट कि किसी भी केस में हम यहां पे लगातार सर्वे करते रहें। ये पहली चीज हो गई। फिर क्या है कि ये देखो, ये इतना नजदीक है, ये इतना नजदीक है। सो अगर किसी भी तरह की एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी Maldives में होती है, किसी भी तरह की, फॉर एग्जांपल विथ रिस्पेक्ट टू टेररिज्म या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, naturally it can very easily come to Maldives and it can very easily come to India and it can very easily go to Sri Lanka. So इस कारण security wise also Maldives becomes very much important for us. And just imagine कि श्रीलंका में यहां पे हम्बनटोटा पर चाइना इज देयर, ओके, इधर जिबूती में चाइना इज देयर, यहां पे पाकिस्तान में एट ग्वादर चाइना इज देयर। अगर चाइना बहुत स्ट्रांगली यहां भी आकर बैठ जाता है, सो इमेजिन व्हाट अ बिग सिक्योरिटी चैलेंज इट विल बी फॉर अस।
डोंट यू थिंक? सो दैट इज वाई ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशल हो जाता है मॉलडीव्स इस तरीके से, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिहाज से, सेफ्टी ऑफ सीलेंस ऑफ कम्युनिकेशन के लिहाज से, प्रिवेंटिंग चाइनीज डिजाइंस एंड इंश्योरिंग इंडियाज प्राइमेसी इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। उसके अलावा जो सी बॉर्न थ्रेट्स हैं, जैसे कि पायरेसी हो गया, जैसे कि टेररिज्म हो गया, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, इन सारे को चैलेंज करने के लिए, उसके अलावा इंश्योरिंग स्टेबिलिटी इन दी सदर्न रीजन ऑफ इंडिया, इसके लिए भी मॉलडीव्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो इसके आगे की बात क्या है, और मॉलडीव्स का जो सिक्योरिटी डिजाइन है ना, ये एक ट्राइलैटरल सिक्योरिटी डिजाइन है, एंड वेरी फ्रीक्वेंटली यू विल लिसन और यू विल रीड दैट NSAs of Maldives, India and Sri Lanka have met. This is that security, trilateral security mechanism through which security and safety of Maldives is ensured. Because Maldives does not have much of a population, it does not have much of resources. लेकिन अगर यहाँ पे किसी भी तरह की डिसरप्टिव एक्टिविटी बढ़ती है तो उसके कारण क्या होगा, श्रीलंका के लिए वो चैलेंज हो सकता है, श्रीलंका से बड़ा हमारे लिए वो चैलेंज हो सकता है। सो दैट इज वाई नेचुरली इट बिकम्स अ कंबाइंड एफर्ट, अ ज्वाइंट एफर्ट, ठीक है। सो दैट इज वाई हमने यहाँ पे कोस्टल रेडार्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पे रख रखी है, ठीक है। अब देखो ये सारे के सारे नाम मैं आपके सामने ले चुका हूं, एंड नाउ आई वुड जस्ट लाइक टू एक्सप्लेन। ये कौन है? ही इज अब्दुल्ला यामीन, ठीक है। एंड ही इज हाफ ब्रदर ऑफ मौमून गयूम। मौमून गयूम कौन? जिन्होंने की 30 इयर्स जिनका डिक्टेटोरियल रेजिम रहा, ठीक है। ही कौन है? ही इज मोहम्मद नाशीद, ठीक है। प्रेजेंटली ही इज द स्पीकर, and in 2008 when the first multi-party elections took place he became the president. उसके बाद क्या हुआ था, 2008 से 12 तक ही वॉज द प्रेसिडेंट, लेकिन 12 के बाद इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट आने लगे, बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने लगे, सो आफ्टर दैट फाइनली ही हैड टू रिजाइन, ठीक है। ही इज मिस्टर इब्राहिम सोली। ये कब से कब तक थे? 2018 से 2023 तक। इनके इनॉग्रेशन में पीएम मोदी हैड गॉन एंड ही हैड रीअफर्म्ड इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, और उसके बाद इंडिया ने $1.5 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट इन्वेस्टमेंट, ये ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ये सारे के सारे इनके रेजिम में चला। एंड ही इज मोहम्मद मोइजू, जो कि अभी इन्होंने जीता है, एंड इट इज बीइंग सेड दैट he will be pro China and that will be a setback for India's neighborhood first policy, और इंडिया का जो अपना ये है, ठीक है। Now you see this India out campaign, this was in response to India first policy, और उसमें क्या था कि अक्टूबर, जो आप देख रहे हो दैट इन अक्टूबर 2020 ये जो प्राइमरली जो है ना पीपीएम और पीएनसी, इन दो पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर के लॉन्च किया था। एंड व्हाट वाज द एजेंडा? द एजेंडा वाज सोवरेनिटी। और इंडिया आउट डज नॉट मीन इंडियन आउट, it means there were some more than 40 Indian soldiers who are deployed in Maldives. किस लिए? So as for training and for maintenance and operation of the choppers as well as dorniers.
क्योंकि जब तक मालदीव्स की जो आर्मी है, अगर जब तक उसे एक्सपीरियंस नहीं मिल जाता तब तक इंडिया वाले उसे सिखाएं, हेल्प करेंगे। सो इंडिया के इस डिप्लॉयमेंट को इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने मुद्दा बना लिया कि देयर इज अ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट एंड दिस गोज अगेंस्ट इंडिया मालदीव्स सोवरेनिटी। तो उसी को जब आप नेपाल के केस में देखते थे तो इंडिया इज इंटरफियरिंग इन नेपाल से इंटरनल अफेयर्स। श्रीलंका के केस में भी महिंदा राजपक्षे ने बोला था इंडिया इज इंटरफियरिंग इन, जब सिरिसेना जीत गए थे तो इंडिया इज इंटरफियरिंग श्रीलंका's internal affairs. So this is that fact कि how politics of developing nations and the developed nations differ. In developed nations you will never talk about issues like sovereignty, though there are issues of interference, and that to interference की बात हाल फिलहाल आई है, interference की बात हमेशा से नहीं थी। अभी when you are talking about यूएस के इलेक्शंस में रशिया का इंटरफियरेंस या फिर कनाडा के केस में चाइना का इंटरफियरेंस, दैट इज अ रिसेंट थिंग, बट यहाँ पे वेरी फ्रीक्वेंटली वी विल लुक इनटू दिस। और यहाँ पे ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सारे देशों में ना जो इनका नेशनहुड है दैट इज कंपैरेटिवली वेरी न्यू। सो व्हेन योर नेशनहुड इज न्यू यू आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट इट। एंड नेक्स्ट इज इंडिया इज अ प्रीपोंडरेंट पावर और इनका पॉपुलेशन बहुत छोटा है, तो दैट फियर इज ऑलवेज देयर कि कहीं इंडिया हमें ओवर पावर ना कर ले, कहीं इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो ये फियर साइकोसिस हमेशा दिमाग में चलता है, एंड दिस फियर साइकोसिस इज यूज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज टू मोबिलाइज पीपल इन देयर फेवर। तो ये अगेन हो जाता है आपका डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के पॉलिटिक्स के बीच का डिफरेंस। आप वहां पे क्या देखते हो, आप वहां पे इश्यूज देखते हो रिलेटेड टू क्लास, रिलेटेड टू रेस, डेवलपमेंटल इश्यूज की बात होती है, वेदर इट हैज टू बी कंजर्वेटिव और इट हैज टू बी डेमोक्रेटिक और लिबरल और प्रोग्रेसिव। लेकिन यहाँ पे वो नहीं होता है, यहाँ पे नेशनलिज्म बिकम दैट इशू, यहाँ पे दैट आइडेंटिटी बिकम्स दैट इशू। ठीक है, तो ये उसी के कुछ कुछ इमेजेस हैं, इंडियन मिलिट्री आउट, इंडिया आउट कैंपेन, एंड यू कैन सी दिस इज अब्दुल्ला यामीन, द एक्स प्रेसिडेंट एंड द ट्रू चाइना कैंडिडेट। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ कि इट फ्यूएल्ड एंटी इंडिया सेंटिमेंट। तो देखो आगे क्या हुआ ना कि रफली अराउंड 2020 यूरोप और चाइना से ज्यादा इंडियन टूरिस्ट पहुंचे थे मालदीव्स में, सिंस इट इज क्लोजर, एंड जैसे जैसे इंडिया का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो नेचुरली पीपल विल लुक टू गो एट अदर एक्सोटिक डेस्टिनेशंस, और मालदीव सबसे नजदीक का पहुंचता है। सो व्हेन यू आर हैविंग सच एन एंटी इंडिया कैंपेन इन द नेम ऑफ इंडिया आउट, तो इसके कारण क्या है कि पब्लिक के बीच में भी एक एंटी इंडिया रिसेंटमेंट आएगा। इसके कारण देयर वेर आल्सो सम एग्जांपल्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट इंडियन पीपल, इंडियन टूरिस्ट्स। और वहाँ पे क्या है कि वहाँ के हॉस्पिटल्स में, वहाँ के स्कूल्स में देयर आर अ लॉट मेनी इंडियंस हु आर प्रोवाइडिंग सर्विस इन मालदीव्स, सो देयर वेयर वायलेंस, देयर वेयर थ्रेट अगेंस्ट देम। सो इसके नतीजे में क्या आया कि सोली गवर्नमेंट ने 2022 में इंडिया आउट कैंपेन को बैन कर दिया कि यू कैन नॉट गो फॉर दैट। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, इट्स बट नेचुरल कि पब्लिक जो है वो उल्टा सोचती है, पब्लिक को सोचने लगी कि ऐसा क्या मामला है कि इसने इस कैंपेन को बैन क्यों कर दिया। तो जो पब्लिक के दिमाग में जो डाउट था, दैट डाउट फर्दर स्ट्रेंथेंड। दिस वाज इंडिया आउट कैंपेन। ये क्या था, प्राइमरली ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंडिया एक फैक्टर बन गया। और इन द पास्ट जस्ट लुक एट इट, सिंस इंडिया स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द डिक्लाइन इन डेमोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियन स्ट्रिक्स ऑफ अब्दुल्ला यामीन, उसको बदले में क्या मिला, चाइना एक बहुत ही रिलायबल पार्टनर, बहुत ही रिलायबल फ्रेंड दिखा। एंड चाइना के केस में क्या है, चाइना को चाहिए इंडियन ओशन में और साउथ एशिया में फुट होल्ड, एंड चाइना इज नॉट अ नेशन जो कि आपके इंटरनल इश्यूज में इंटरफियर करेगा अनलेस इट इज गोइंग अगेंस्ट चाइनाज इंटरेस्ट। वो उसको डेमोक्रेसी वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो दैट वाज मोर कन्वीनियंट। और चाइना के केस में क्या है कि चाइना आपको पैसे दे करके भी अपना काम करवा लेगा। और उसी के बाद क्या हुआ था कि अब्दुल्ला यामीन व्हेन ही वाज आउट ऑफ प्रेसिडेंट 2018, उसके बाद इनके ऊपर ग्राफ्ट चार्जेस लगे थे रफली $3 मिलियन और से
तो $5 million का फाइन और मोर देन 10 years का इनको जेल टर्म भी हुआ था। ठीक है, सो दोज वर द चार्जेस एंड चैलेंजेस दैट वाज इंडिया आउट कैंपेन। You see, this one can be important for some factual information। इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं, बहुत ही लिमिटेड चीजों को आपको याद रखना है। सबसे पहला क्या था, इंडिया ने 1.4 बिलियन यूएस डॉलर का इनको असिस्टेंस के लिए बोला। ये जो सोलिह का इंडिया का विजिट था, एंड ही रीआइटरेटेड इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। एंड देन उसके आगे आप ये देखो, हाँ 3-4 चीजें बहुत मजेदार। एक जैसे ये देखो, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ये जो है ना, ये इंडिया का मॉलडीव्स में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ओके, और बाकी मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट हो गया। और लास्ट में ये जो मॉलडीवियन पुलिस अकेडमी बनी है, दिस हैज बीन फॉर्म्ड विथ इंडियाज इंटरेस्ट। एंड थिंक ऑफ द स्केल ऑफ पैरानोइया। क्रिटिसिज्म क्या है ऑपोजिशन पार्टीज का कि अकेडमी इतनी बड़ी क्यों बनी है, क्योंकि अकेडमी इतनी बड़ी है सो दैट कि यहाँ के इंडियन पर्सनल और उनकी फैमिली मेंबर्स आकर के रह सके, सो दैट विल फर्दर लीड टू ऑक्यूपेशन ऑफ मॉलडीव्स। जबकि इन रियलिटी ऑल दीज फियर्स आर अनफाउंड। लेकिन क्या होता है कि जब आप पब्लिक में ऐसी बातें 2 बार 4 बार बोल देते हो तो पब्लिक धीरे धीरे उसे सच मानने लगती है। पब्लिक कहती है इतने बड़े अकेडमी की क्या जरूरत थी। सो ऑल दीज फैक्टर्स दे बिकेम द बेसिस कि इंडिया का इंटरफियरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो उसके और इन्होंने जो है मोइजू, ये इंडिया आउट कैंपेन के बेसिस पर ही इनका वन ऑफ द की इकोनॉमिक प्लैंक्स रहा है। सो दैट इज व्हाई इंडिया इज कंसर्न्ड, इट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड। हालांकि इंडियन एम्बेसडर से वो मिले थे, सबसे पहले वो यूके के एम्बेसडर से मिले, उसके बाद चाइना, उसके बाद थर्ड पे इंडिया। एंड ड्यूरिंग द मीट ऑल्सो he talked about sovereignty, and sovereignty was indirectly an indication. However, this is till now this is just a speculation, क्योंकि जैसे ही इंसान इलेक्शन जीतता है ना, because it is about governance and governance is not something that can be flipped overnight. And even Maldivian people, they have looked at श्रीलंका की चाइना के डेट क्राइसिस के कारण श्रीलंका का क्या हाल हुआ, so they are also alert, they are also aware. So as a result what has happened is that this Muhammad Nasheed presently, who is the speaker, and he has said that he will also be joining the government, and he said that his win is not about anti-India or pro-China, and he has also said that perhaps Maldives will be inviting Prime Minister to the inauguration ceremony, and India out was not the main election issue, and the relationship go back to hundreds of years, and you simply cannot change it overnight. And perhaps 75 military personnel they will remain, ताकि क्योंकि सिक्योरिटी के लिए जरूरत है। ठीक है, सो पॉइंट इज कि परहैप्स इट इज टोनिंग डाउन दैट रेटरिक, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर जरूरत होती है, गवर्नेंस का मामला टोटली अलग होता है। सो वी जस्ट होप दैट थिंग्स do not go that much drastically different as it was during Abdullah Yamin regime. However, this is something कि आप कह सकते हो कि कैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इंडिया के अपने नेबर्स के साथ रिलेशन को इम्पैक्ट करता है इंडियन ओशन रीजन में, एंड दिस कैन बी एन इंडिकेशन टुवर्ड्स अ फर्दर चाइनीज चैलेंज इन Maldives as well. Okay, that's all for today. Here we end this discussion. Thank you.